on creating for community radio featuring our experts speaker Madhuri Damalema. Pimpri Chinchwad University, which is an integral part of PCET network, celebrates a 33-year tradition of education excellence. As a key institution in PCET's long-standing educational legacy, we are dedicated to developing future leaders. Our university consists of several prestigious schools, each focused on excellence in their specific areas. These include School of Engineering and Technology, School of Management, School of Design, School of Sciences, School of Liberal Arts and Humanities, School of Pharmacy, School of Law, and School of Media and Communication Studies. In our School of Media and Communication Studies, we offer diverse range of programs designed to keep pace with changing needs of this industry. Programs such as BA in Journalism, Media and Communication Studies, BSc in Animation, VFX, and Multimedia Sciences, BBA in Advertising, Events, and Public Relations, and BBA in Digital Filmmaking are available. And we invite you to explore the latest trends and opportunities in these areas during our upcoming webinar. But before we start, let's just have a small glimpse of our prestigious university. We'll just be playing a short video for you. The Pimpri Chinchwad Education Trust has established a state private university known as Pimpri Chinchwad University at Sate, Vadgaon Mawar in Pune Metropolitan Regional Development Authority. It is a 30-acre campus of academic facilities and amenities for students and teachers to help them to achieve their fullest potential. The Pimpri Chinchwad University campus is well connected with the cities Pune and Pimpri Chinchwad by road through Mumbai-Pune National Highway number 4 as well as Mumbai-Pune Expressway. Also, railway station Kanhe is at 1 kilometer distance. The nearest airport is Pune Airport. PCU has its different verticals which prepares leaders from different fields. School of Engineering and Technology. School of Design. School of Media Arts and Communication Studies by incorporating cultural activities, events and organized tours and trips, fostering a holistic development approach. In a sense, Pimpri Chinchwad University is not just an institution. It is a vibrant ecosystem that nurtures talent, fosters creativity and provides a platform for students to thrive in every aspect of their academic journey. PCU Bus Transport provides service across the city. Pimpri Chinchwad University, transformative education that empowers success in a rapidly evolving world.
So that was just a small glimpse of our university. And today I am pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. Manimala Puri ma'am, our Pro Vice Chancellor, Dr. Sudeep Thepade sir, respected deans, directors, heads of institutions, faculty members, and all the students who have joined with us today for this event. This webinar aims to provide the deep insights into the field of community radio, offering specific highlights about creating content for community radio. And today we are privileged to have with us Miss Madhuri Damale ma'am, a distinguished professional in the field of radio. Since 2015, Damale ma'am has amazed a width of knowledge and experience, making significant contributions through various roles in this industry. Her impressive career began with Vidyavani Community Radio, where she dedicated 7 years as a program assistant. Following this, she served as a radio jockey at Rainbow, All India Radio Mumbai, captivating audience with her engaging presence. Her talents extends beyond radio. She is multifaceted, freelancer, excelling as a writer, lyricist, composer, anchor, actress in theatre, content writer, and voiceover artist. And currently, she holds the esteemed position of manager at Infinity Radio. And we are delighted to have Madhuri ma'am with us today, who is going to share the valuable insights and experiences with us. We welcome you, ma'am. Thank you so much for joining us today. Hello, Nidhi. Hello, ma'am. Okay, so today there are many students who have also joined with us here. So these are the students who are just going to start with their course in media and communication studies. So we also have the subject of radio, and as it is a significant part of media. So can we start with a very basic के क्या difference है FM में और community radio में? How do we determine that? What exactly is community radio? Yeah, sure. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने किया मेरा और रेडियो का भी, और कम्युनिटी रेडियो के बारे में आज जानना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए, फिर भी रेडियो अभी भी सस्टेनेबल मॉडल में से है, पॉपुलर है, तो रेडियो जानना बहुत जरूरी है और उसमें कम्युनिटी रेडियो की जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं आज के वेबिनार में उस क्लास में आपको समझ में आएगा कि जितने भी रेडियो अभी वर्किंग है हमारे इंडिया में, उसमें कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सच में ग्राउंड लेवल पर कम्युनिटी के लिए काम करता है और कम्युनिटी को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। तो जानेंगे कि कम्युनिटी रेडियो की जरूरत क्यों थी, जबकि ऑल इंडिया रेडियो ऑलरेडी एस्टैब्लिश था और प्राइवेट एफएम्स भी एस्टैब्लिश हो चुके थे। तो हम दोनों ये मीडियम्स जानते हैं, एक तो ऑल इंडिया रेडियो विच इज अ गवर्नमेंट रेडियो चैनल, एंड ये भी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पे हम क्या क्या सुनते हैं, उसमें इंटरव्यूज सुनते हैं, इंफॉर्मेशन रहती है, एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामाज रहते हैं या म्यूजिक रहता है। वैसे ही प्राइवेट एफएम जब हम सुनते हैं तो उसमें 90% हम सॉन्ग्स सुनते हैं और उसमें कमर्शियल्स सुनते हैं। अब जब हम आगे जा रहे हैं तो कमर्शियल्स में भी, मतलब प्राइवेट एफएम में भी हम अभी जानते हैं कि इंटरव्यूज रहते हैं या फिर अलग अलग सोशल टॉपिक्स पे आरजेस बात करते हुए हम सुनते हैं, ताकि सोशल अवेयरनेस के लिए रेडियो का उपयोग हो। तो ये दोनों माध्यम में एक्सपर्ट्स काम करते हैं। अगर ऑल इंडिया रेडियो में मैं ऐसे ही जाती हूँ कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है तो मैं बना नहीं सकूंगी, क्योंकि वहां पे स्टूडियो में एंटर करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स है, वो है आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो अलग है। प्राइवेट एफएम सेम कि मैं ऐसे ही जाऊं कि मुझे बस मैं विलिंगनेस है मेरा कि मुझे प्रोग्राम करना है रेडियो पे, तो मैं प्राइवेट एफएम में भी स्टूडियो में जाके प्रोग्राम नहीं कर सकती। पर कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिंगल प्रोग्राम अगर आपको करना है आपकी पसंद का, तो वो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीरीज प्लान करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको गाना गाना है तो आप गा सकते हो। अगर आपको स्टोरी बतानी है तो आप बता सकते हो। सो दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी रेडियो।
कि कम्युनिटी रेडियो के स्टूडियो के जो डोर्स है सारे कम्युनिटी के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। यहाँ पे कोई ही भी प्रोफेशनल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप डोर के अंदर आना चाहते हो तो कोई भी आ सकता है। स्टूडियो के अंदर आना है तो थोड़ा सा गाइडेंस आपको जरूर लेना पड़ता है, थोड़ी तैयारी आपको जरूर करनी पड़ती है, पर कम्युनिटी रेडियो आपको ना नहीं कहता। ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि सबके लिए है कम्युनिटी रेडियो, उसके नाम में ही है कि कम्युनिटी ने कम्युनिटी के लिए चलाया हुआ रेडियो, दैट इज दी कम्युनिटी रेडियो। सो जो कोई भी अपनी आवाज हजारों श्रोताओं तक, लाखों श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता है तो वो कम्युनिटी रेडियो में अपना आवाज ट्राई कर सकता है, अपनी सारी जो भी विलिंगनेस है वो ट्राई कर सकता है। सो दैट्स द मेन कॉज कि कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश हुआ है। और उससे आगे जाके मैं कहूंगी कि जैसे हम ये दोनों रेडियो में, मतलब ऑल इंडिया रेडियो और प्राइवेट एफएम में, दोनों में म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं और बीच बीच में हम टॉक सुनते हैं जिसका ड्यूरेशन बहुत कम रहता है, 5 मिनट से ज्यादा तो रहता नहीं है एक बार में। तो कम्युनिटी रेडियो में 80% जो है वो कंटेंट रहता है और 20% जो है गाने बजते हैं, सपोर्टिव रोल रहता है गानों का। 80% कंटेंट जो है वो कम्युनिटी मेंबर्स खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ है। आपको अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम अनेक कम्युनिटी रेडियोस पे सुनाई देंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके। यस। सो मुझे बस अब अगला सवाल ये है कि लाइक यू हैव सेड कि एंटरटेनमेंट का जो एस्पेक्ट है या गाने बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टुवर्ड्स ज्यादा डेडिकेटेड रहता है? उसके बारे में इफ यू कैन टेल समथिंग। जी, उसके बारे में जानेंगे। जस्ट एक हिस्ट्री बता देती हूँ कम्युनिटी रेडियो की, कि कम्युनिटी रेडियो 2004 में पहला कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश हुआ है अन्ना यूनिवर्सिटी का। और ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2024 चल रहा है और इसी साल कम्युनिटी रेडियो को 20 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। और अब मतलब 24 जब चल रहा है तो 488 कम्युनिटी रेडियोस पूरे इंडिया में ऑपरेशनल है। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग छोटे छोटे जो एरियाज है, छोटे छोटे गांव है, वहां पर भी कम्युनिटी रेडियो अभी काम कर रहे हैं। जैसे हम पूना में रहते हैं तो मेट्रो सिटीज में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे मैं, आप चाहे तो प्राइवेट एफएम सुन सकते हो, आप चाहे तो ऑल इंडिया रेडियो सुन सकते हो, आप चाहे तो कम्युनिटी रेडियो सुन सकते हो, या फिर आप स्पॉटिफाई पे अपनी पसंदीदा गाने भी सुन सकते हो। चॉइस इज योर्स। बट जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो वहां पर अभी भी चॉइसेस बहुत कम है। हम्म। उन्हें अलग कंटेंट की जरूरत है। वो कंटेंट वहां पर कम्युनिटी रेडियो इस 2024 में भी बहुत इफेक्टिवली पहुंचा रहा है। तो सिटीज में कम्युनिटी रेडियो ऑपरेशनल है, वो अच्छा काम कर ही रहे हैं, पर रूरल एरियाज में जो कम्युनिटी रेडियोस है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से और बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहती थी मैं। महाराष्ट्र में बात करें तो अभी 45 कम्युनिटी रेडियो ऑपरेशनल है अलग अलग जिलों में। जैसे पूना में हम हैं तो पूना में 4 to 5 कम्युनिटी रेडियोज अभी ऑपरेशनल है। हमारा जैसे पीसीटी का ये कम्युनिटी रेडियो है इन्फिनिटी कम्युनिटी रेडियो, वैसे ही सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का विद्यावाणी कम्युनिटी रेडियो है। राहटनी में आप जाओगे तो पुणेरी आवाज करके कम्युनिटी रेडियो अभी ऑपरेशनल है। और एफटीआईआई, फिल्म टेलीविजन एंड इंस्टीट्यूशन जो है, वहां पे रेडियो एफटीआईआई है, वो अभी कार्यरत है। बारामती में वसुंधरा कृषि वाहिनी करके एक कम्युनिटी रेडियो है जिसे 15 इयर्स हो चुके हैं। मतलब 20 इयर्स जो ओवरऑल कम्युनिटी रेडियोस को हो रहे हैं उसमें 15 इयर्स वसुंधरा अभी बहुत एस्टैब्लिश कम्युनिटी रेडियो करके काम कर रहा है। तो जैसे हम ऑल इंडिया रेडियो पूना में सुनते हैं वैसे बारामती में वसुंधरा कृषि वाहिनी सुनाई देती है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी के ऑपरेशनल सीआरएस के बारे में। या और आप बोल रही थी अभी सोशल अवेयरनेस। यस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटी रेडियो
किस टाइप के प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करें, तो उसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स, सोशल डेवलपमेंट को मदद करने वाले प्रोग्राम्स, लोकल कल्चर को इनरीच करने वाले या फिर उसे उसका संवर्धन करने के लिए, उन्हें जतन करने के लिए के जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोग्राम्स, और म्यूजिक, वो तो हम्म। बेस करता है किसी भी रेडियो का। ऐसे कहते हैं कि म्यूजिक इज अ सोल ऑफ रेडियो, म्यूजिक के बजाय तो रेडियो बजता नहीं है। तो फिर ये जो एस्पेक्ट्स है ना, एजुकेशनल है, सोशल डेवलपमेंट है और कल्चरल प्रिजर्वेशन है, तो इन सारे बेसिक हेतुओं पे ये कम्युनिटी रेडियो कंटेंट क्रिएट करता है। हम्म। ओके। अभी कंटेंट क्रिएशन की बात ही हो रही है, सो अभी मुझे हमें ये जानना है कि कैसे डिफरेंट होता है ये, लाइक यू हैव सेड इट्स नॉट जस्ट सॉन्ग्स। तो क्या या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी इसमें? यस, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी हमने कहा है बहुत इजीली कि हर कोई कम्युनिटी रेडियो में प्रोग्राम कर सकता है, तो उसमें हर कोई है। मतलब छोटे बच्चे से लेकर पूरे सीनियर सिटीजन तक कोई भी जो है कंटेंट क्रिएट कर सकता है। और स्पेसिफिकली बताऊं तो कौन कर सकता है कंटेंट क्रिएशन कम्युनिटी रेडियो में, तो वो प्रोफेशनल्स है, अलग हम्म। अलग विषयों पर जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो एक्सपर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल टीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके आगे जाके मैं कहूंगी कि हॉकर्स रहते हैं ना, हाँ। जो रास्ते पे रहते हैं, हॉकर्स, तो वो भी कम्युनिटी के कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। अगर आप होम मेकर हो तो आप भी कम्युनिटी रेडियो के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकती है। तो ये रेंज है कि ये सारे जो क्लासेस है वो सारे कम्युनिटी रेडियो के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। कौन से टाइप का कंटेंट क्रिएट होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी रेडियो में 80% कंटेंट बनता है, तो 80% अगर मैं ही बोलती रहूं अकेली तो कोई सुनेगा नहीं। तो उसे अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग डिजाइन्स में आपको प्रेजेंट करना है। जो भी आपका टॉपिक है उसे हम अलग अलग फॉर्मेट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेट टॉक है, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, बीच बीच में हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये इंटरेक्टिव टाइप में जाता है। स्ट्रेट टॉक माने मैं अकेली बात कर रही हूँ, जैसे क्लास टीचर बात करती है और लोग सुनते हैं, तो वो स्ट्रेट टॉक के फॉर्मेट में जाता है। दूसरा है इंटरैक्टिव, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें इंटरव्यूज भी आते हैं और इंटरैक्शन भी आते हैं। ये इंटरैक्शन वन बाय वन, वन टू वन हो सकता है या फिर ग्रुप में हो सकता है। हम्म। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। कोई भी सोशल टॉपिक पे आप ग्रुप डिस्कशन कम्युनिटी रेडियो पे चला सकते हो। अभी हम देखेंगे कि करंट जो टॉपिक्स है अलग अलग, जैसे अभी रेनी सीजन शुरू है, हम ऐसे इंसिडेंट सुन रहे हैं कि कहीं पे दुर्घटनाएं हो रही है, कहीं पे बारिश नहीं हो रही है। इन सारी चीजों पे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, जिसमें एक्सपर्ट शामिल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं, प्रोफेसर शामिल हो सकते हैं, या फिर कम्युनिटी मेंबर्स जो कि सिटीजन्स है, नॉट नेसेसरी कि दे मस्ट बी ऑन एनी पोजीशन, कम्युनिटी मेंबर्स है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हुआ ग्रुप डिस्कशन का फॉर्मेट, जिससे बहुत अलग अलग विचार आपको एक टॉपिक के एक ही टॉपिक पे सुनने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है स्टोरी और ड्रामा, विच इज मोस्ट एंटरटेनिंग फॉर्मेट ऑफ रेडियो। जब आप अभी टीवी का जमाना है या फिर शॉर्ट्स का, रील्स का जमाना है, तो आप देखते हो, वो रील्स भी हम 30 सेकंड के आगे नहीं देखते। तो रेडियो के लिए हमेशा से ये चैलेंज रहा है कि आपकी आवाज से आप ये सारा जो कंटेंट है वो पहुंचाओ, क्योंकि आवाज के बगैर कोई भी मीडियम आपके पास नहीं रहता कि जो आप बता रहे हो वो अच्छी तरीके से डिकोड हो सामने। तो स्टोरी और ड्रामा मोस्ट एंटरटेनिंग, और उसके प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा मजा है ड्रामा के। तो कोई भी टॉपिक ड्रामा के फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद है वॉक्स पॉप। ये बहुत ही अभी पॉपुलर वाला फॉर्मेट है। वैसे ही कोई भी आप एक टॉपिक पे आप वॉक्स पॉप चला सकते हो। वीडियो नहीं करना है हमें, उसका ऑडियो फॉर्मेट हमें करना है, क्योंकि रेडियो पे है। उसके बाद है मैगजीन प्रोग्राम।
मैगजीन प्रोग्राम फिर से एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। Wait. जैसे हम ये अलग अलग फॉर्मेट्स अभी देख रहे हैं, तो मैगजीन कैसे रहता है ना कि उस मैगजीन में एक थीम रहती है, और उस थीम के ऊपर मैगजीन में अलग अलग फॉर्मेट में प्रोग्राम्स रहते हैं। जैसे इंटरव्यूज रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, कार्टून्स भी रहते हैं, या फिर कोई कविता रहती है ना। तो मैगजीन में ये अलग अलग फॉर्मेट के प्रोग्राम्स एक ही थीम के ऊपर हमें बुक में पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो वैसे ही रेडियो पर भी ये मैगजीन प्रोग्राम आप चला सकते हो। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के लिए दूँ तो अभी लोनावला बुशी डैम की जो अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंट हुआ, वो क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, अगर आपको ये लग रहा है ये टॉपिक और डिटेल्ड में पहुंचे ऐसे आपको लग रहा है, तो आप मैगजीन प्रोग्राम उसमें प्रोड्यूस कर सकते हो उस थीम के ऊपर, कि आप बारिश में घूमने के लिए जा रहे हैं तो फिर क्या नहीं किया जाए और क्या किया जाए। तो ओके। उस मैगजीन प्रोग्राम में आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो, जो कि रेस्क्यू टीम्स रहती है उसमें, है ना। तो वो रेस्क्यू टीम रहती है, या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर्स रहते हैं, जो कि आपको बता सकेंगे कि क्या क्या आपने सावधानियां बरतनी हैं जब आप घूमने जा रहे हो रेनी सीजन में, चाहे आप समंदर किनारे जाओ, या फिर ट्रेकिंग के लिए जाओ, या फिर फैमिली के साथ डैम पे जाओ। तो वो एक ऑफिसर रहेगा। उसके बाद रेस्क्यू टीम ग्रुप्स जो है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। कम्युनिटी मेंबर्स रहेंगे जो कि बात करेंगे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों होना, ये कैसे वो टाल सकते थे ये होनी जो हुई है। उसके बाद गाने आप चला सकते हो जो इस टॉपिक को बिल्कुल भी सूट करे। कोई मतलब आप ढिंचैक वाला गाना तो नहीं चलाएंगे उस टॉपिक पे। तो ये सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी होती है आपको प्रोग्राम फॉर्मेशन के वक्त। कम्युनिटी मेंबर्स के आप उसमें ओपिनियंस ले सकते हो। ये हुआ है। ड्रामा उस पे आप लिख सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसी ही चीज अभी हम जैसे वीडियो देखते हैं ना, तो वो होनी हम देखते हैं कि क्या था और क्या हुआ है। वैसे ही ड्रामा में अगर आप ये स्टोरी बता सको तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। एक ड्रामा क्या कर सकता है कि एक ड्रामा बहुत आपको अवेयर कर सकता है कि उसके बाद क्या होता है। जाने वाला तो चला जाता है, पर उसके बाद जो पीछे रह गए हैं उनका क्या होता है, ये आप ड्रामा के फॉर्मेट में बता सकते हो। उसमें फैंटेसी का, क्योंकि आपको वो लिबर्टी रहती है कि आप उसमें फैंटेसी भी ऐड करो। तो ये हुआ है मैगजीन प्रोग्राम, जिसमें आपको एक ही प्रोग्राम आप सुनोगे तो आपको वेरियस एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी मिलेंगे, कम्युनिटी मेंबर्स का भी उसमें ओपिनियन मिलेगा, गाने भी लगेंगे और ड्रामा भी रहेगा। तो ये है मैगजीन प्रोग्राम। उसके बाद एक फॉर्मेट रहता है जो आप इवेंट कवर करते हो। अभी जैसे कम्युनिटी रेडियो न्यूज़ नहीं दे सकता है क्योंकि उसका मॉनिटरिंग नहीं होता। आपके प्रोग्राम का मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग नहीं रहता, तो इसलिए न्यूज़ बैन है कम्युनिटी रेडियो पे। पर आसपास के हैपनिंग्स आप बिल्कुल भी बता सकते हो। तो आपके लोकल एरिया में जो भी इवेंट्स है आप वो कवर कर सकते हो। जो आउटडोर रिकॉर्डिंग्स हम करते हैं तो वो आप प्रेजेंट कर सकते हो कम्युनिटी रेडियो पे। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स है। ये जो 80% कंटेंट है ये इन सारे फॉर्मेट में बिठाया जाता है, और उसके लिए फिर अलग अलग कम्युनिटी मेंबर्स भी इसमें ज्वाइन होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स भी रहते हैं, और जो होस्ट है वो भी एज अ प्रोफेशनल आरजे में आरजे के पद पर रहते हैं। ओके। सो मैम, जैसे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, सो वांट टू नो कि एक तो आपने कहा आरजे रहता है, वो वॉइस रहता है, सब सुनते हैं, लेकिन उसके जी अलावा में भी कंटेंट प्रोड्यूस करने में भी, उसके पीछे में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। सो कैन यू टेल कि व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स, उनके क्या रोल्स होते हैं, उनकी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मैंने कहा कि कम्युनिटी रेडियो में कोई भी आ सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, तो कम्युनिटी रेडियो में ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए कौन काम करता है उनके बारे में अभी जानेंगे। स्टाफ
कैसे रहता है कम्युनिटी रेडियो में। एक बात तो ये है कि कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश होते हैं तीन प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में। एक तो रहती है एनजीओ। अगर आप एनजीओ चला रहे हो और आप 3 साल काम कर चुके हो आपके आपकी कम्युनिटी में, तो यू कैन अप्लाई फॉर कम्युनिटी रेडियो। दूसरा जो कैटेगरी है वो है कृषि विज्ञान केंद्र की। वो जो है कम्युनिटी रेडियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी, वो है वेल एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमारी है पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट। सो वी आर सर्विंग फॉर कम्युनिटी सिंस मेनी years, like 33 years. तो वी हैव अप्लाइड फॉर कम्युनिटी रेडियो। अब ये जो तीन प्रकार की हमने संस्थाएं सुनी, उसमें कम्युनिटी रेडियो के लिए का जो बजट रहता है वो बहुत ही रीजनेबल रहता है, ये पहली बात। क्योंकि बहुत कम रिसोर्सेस में, बहुत कम बजट में कम्युनिटी रेडियो आप शुरू करते हो, तो उसकी स्टाफ की जो संख्या है वो भी उसी हिसाब से थोड़ी सी कम रहती है। जैसे बाकी आप कंपनीज देखो तो वहां पे बहुत सारी मैन पावर जिसे हम कह सके तो वो रहती है। कम्युनिटी रेडियो में आपको कम्युनिटी को अपनी मैन पावर बनाना पड़ता है, और जो स्टाफ काम करता है वो ऑलराउंडर के पोजीशन पे काम करता है। जैसे कि मैं अभी इन्फिनिटी में प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पर हूँ, पर मैं आरजेइंग भी कर रही हूँ, मैं रेडियो के लिए कंटेंट भी क्रिएट कर रही हूँ, मैं रेडियो की मार्केटिंग के लिए भी सोच रही हूँ, और वो पहुंचा जाए, उसका रीच बढ़े, उसके लिए भी नए नए कंसेप्ट डेवलप कर रही हूँ। वैसे ही और जो दो पोजीशंस अभी इन्फिनिटी में है वो है, एक है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और दूसरा है प्रोडक्शन असिस्टेंट। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की जो ड्यूटी रहती है वो रहती है स्टूडियो मैनेजमेंट की। ये सारे जो कंटेंट बनते हैं ना, उसके रिकॉर्डिंग्स होते हैं रेडियो में, कम्युनिटी रेडियो में। जैसे ऑल इंडिया रेडियो या प्राइवेट एफएम है तो वो लाइव जाते हैं। आपको पता है कि लाइव स्टूडियो में आरजे बैठा हुआ होता है और वो लाइव गाने सुनाता है, लाइव आपसे बात करता है। ऑल इंडिया रेडियो में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइव जाते हैं। कम्युनिटी रेडियो में सॉरी, रिकॉर्डेड रहता है। क्यों रिकॉर्डेड रहता है? क्योंकि जैसे हमने सुना कि यहाँ पे आने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेडियो के लिए तैयार नहीं रहते, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर वो वॉलेंटियर्स है, वो चाहते हैं कि प्रोग्राम करें, कैसे करना है वो जानते नहीं है। मतलब मैं रेशो बताऊं तो 40% जो लोग हैं वो जानते हैं, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है प्रोग्राम्स का या फिर एंकरिंग का या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग का। पर 60% जो जनता आती है, तो एक्सपर्ट्स भी आते हैं तो भी उन्हें रेडियो का जो नॉलेज है वो नहीं रहता। तो वो हमें उन्हें बताना पड़ता है। और उस लिए टाइम चाहिए। जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं उनमें अगर कुछ फ्लॉज रह चुके हैं तो वो एडिट करने के लिए टाइम चाहिए, और उसके बाद वो ऑन एयर करने के लिए और थोड़ा सा अलग टाइम चाहिए। तो इसलिए कम्युनिटी रेडियो पे सारे प्रोग्राम्स जो है रिकॉर्डेड रहते हैं। कुछ कुछ प्रोग्राम्स है जो आप लाइव शेड्यूल कर सकते हो। ये बाय द टाइम जैसे कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश होता है वैसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग का जो ड्यूरेशन है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैंने कहा कि तीन ये जो पोजीशंस है, हाल ही में इन्फिनिटी में अभी हम तीन पोजीशंस में ऑपरेट कर रहे हैं। हर एक कम्युनिटी रेडियो में अलग अलग पोजीशंस रहते हैं। इसके आगे प्रोडक्शन असिस्टेंट के आगे आप सेपरेट रेडियो जॉकी कम्युनिटी रेडियो के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, अगर आपका उतना बजट भी है और आपकी उतनी स्ट्रेंथ भी है। तो अलग आरजे आप वहाँ पे रख सकते हो। मार्केटिंग टीम रेडियो की अलग हो सकती है, और उसी के साथ साथ जो पीआर डेवलप करे, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो में पीआर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको आपकी कम्युनिटी जाननी होती है, पहचाननी होती है, और उस कम्युनिटी के लिए उसी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ साथ प्रोग्राम भी प्रोड्यूस करने होते हैं। तो पीआर इज वेरी essential position which have to be in कम्युनिटी रेडियो, कि जो आपके कम्युनिटी का रीच भी बढ़ाए और कम्युनिटी रेडियो
को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा सके सोसाइटी में। तो ये सारे पोजीशंस पे कम्युनिटी रेडियो भी काम करते हैं। हर एक कम्युनिटी रेडियो की अलग अलग सिस्टम रहती है, और उसी के साथ साथ उसके पोजीशंस भी बदलते हैं। ओके। अभी यू हैव यूज्ड इंटरेस्टिंग, मतलब आपने बताया कि कैसे एक मल्टीपल रोल प्ले करना होता है। जी। तो वही मैं जानना चाहूंगी कि लाइक जैसे हमारे स्टूडेंट्स अभी वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उन्हें जी। क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी होगी, लाइक इफ कैन जी। जस्ट। जी। स्टूडेंट्स के लिए तो कम्युनिटी रेडियो की इंटर्नशिप मैं कहूंगी कि हाँ। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देती है। अभी आप एकेडमिक्स में सारी चीजें आप बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, उसमें कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है। पर कम्युनिटी रेडियो में अगर आप 1 महीना भी इंटर्नशिप करो तो आपको ये सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। जो भी मैंने अभी कहा, एक प्रोग्राम बनता है तो उसके लिए प्रोसीजर रहती है ना, कि उस पहले तो उसकी आइडिया डेवलप होती है कि क्या करें हम। उसके बाद वो आइडिया डेवलप होने के बाद वो पेपर पे आती है, उसका हाँ। स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, ड्राफ्टिंग होता है प्रोग्राम का। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग होने के बाद उसका प्रेजेंटर कौन होगा वो डिसाइड करते हैं हम, कि वो कौन परफॉर्म करने वाला है रेडियो पे। उसकी प्रैक्टिस होती है। फिर वो सेशन रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद वो एडिट होता है। अगर जरूरत है तो उसमें ऑडियो मिक्सिंग कुछ जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक हम ऐड करते हैं या फिर अलग साउंड इफेक्ट्स ऐड करते हैं। ड्रामा में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। तो वो एडिशन सब हो जाती है, और उसके बाद वो एयर होने के लिए रेडी होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सारे फॉर्मेट में रहती है, चाहे आप इंटरव्यू लो, चाहे आप ड्रामा करो, चाहे आप स्ट्रेट टॉक कर रहे हो, या फिर आप म्यूजिक लॉक कर रहे हो, या फिर लाइव शो। सारे प्रोग्राम्स इसी फॉर्मेट में जाते हैं। पहले आइडिया जनरेशन, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, फिर रिकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद एडिटिंग, और फिर वो प्रोडक्शन रेडी होता है एक प्रोग्राम। तो ऐसे कितने प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, आप इमेजिन कर रहे हो कि अभी इन्फिनिटी काम कर रहा है। मतलब हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग टाइम है वो है सुबह 7 से लेके रात 9 बजे तक। तो 14 घंटे रेडियो शुरू है। 14 घंटे में आपको 80% जो है कंटेंट देना है और 20% गाने देने हैं। तो इस स्ट्रेंथ के साथ आपको वो कंटेंट क्रिएट करना होता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब कम्युनिटी रेडियो में एंटर करते हो तो आपको ये सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। स्किल्स ऑलरेडी कौन से होने चाहिए अगर आप ये पूछोगी, तो बेसिक मैं ये बताऊंगी कि आपको ना पैशन होना चाहिए रेडियो में काम करने के लिए। क्योंकि उसके अलावा मतलब पैशन नहीं या फिर इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई भी काम, कि कोई भी नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। पर अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो तो वो तो मतलब वो तो मैंडेटरी ही है। थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग का नॉलेज अगर आपको हो, अगर स्क्रिप्ट राइटिंग आपने नहीं की है पर आपको आइडियाज जनरेट आप कर सकते हो कि मुझे ये सोच रहा है पर उसे कागज पे कैसे उतारना है पता नहीं है, तो वी आर हियर टू गाइड यू। तो कोई तो एक स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए, एक तो आइडिया जनरेट कीजिए या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग आप कीजिए। नॉट नेसेसरी आपको 20 पेजेस का स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू होती है 2 पेजेस से लेके फिर 100 पेजेस तक। तो थोड़ा सा अगर आप कंटेंट पेपर पे लिखना जानते हो, अ, जैसे जिसे हम कंटेंट कहते हैं, तो उसमें कंटेंट रहता है, मतलब नोट्स नहीं है। जो हम क्रिएटिव जिसे कह सकते हैं वैसे वाला कंटेंट, जैसे हम एडवर्टीजमेंट सुनते हैं ना अलग अलग, तो वो भी आप अगर वो भी कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात होती है कम्युनिटी रेडियो के लिए। अगर आपका वॉइस अच्छा है तो यू आर वेलकम। क्योंकि वॉइस को यूज कैसे करना है अगेन वो बताने के लिए हम हैं। क्योंकि हर एक जो फॉर्मेट मैंने अभी बताया उस हर एक फॉर्मेट में अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन लगता है, अलग अलग वॉइस कल्चर आपको यूज करना पड़ता है। तो बेसिक आपका अगर आपके पास वॉइस है, गॉड गिफ्टेड है, या फिर आप अच्छे से बोलना जानते हो, अच्छे से मतलब आप क्लियर बोलना चाहते हो, कोई भी उसमें अगर मैं श्योर नहीं हूँ मेरे टॉपिक के साथ तो मैं फंबल करती हूँ। फिर मैं सीधी बात नहीं करना
मतलब नहीं कर सकती, उसमें बहुत सारे फ्लॉजेस आते हैं, तो वो नहीं चाहिए। आपके दिमाग में आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बात करते वक्त आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए। ये सारी बेसिक स्किल्स है कम्युनिटी रेडियो में एंटर करने के लिए, अगर आप उसमें सीखना चाह रहे हो तो। बाकी रेडियो में प्रोग्राम करना चाहते हो तो हम बेसिक से लेके सारी तैयारी करके लेते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट, मीडिया के स्टूडेंट अगर आप आना चाहते हो तो ये बेसिक तो स्किल्स है। कंटेंट राइटिंग करना थोड़ा सा आना चाहिए, आइडिया आपको जनरेट करने के लिए उसमें बहुत इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करने पड़ते हैं कम्युनिटी रेडियो में, तो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। वॉइस कैसे यूज करना है वो हम बताएंगे। तो और बोलने का कॉन्फिडेंस और बोलने की इच्छा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Okay. उसी से रिलेटेड थोड़ा एक सवाल, लाइक एक कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी की नॉलेज होना और उसके बारे में रिसर्च करना, ये सब कितना इम्पोर्टेंट? क्योंकि अभी सारे लोग लाइक दे आर, वो कहीं और उनका बर्थ प्लेस होता है, कहीं और वो मूव कर जाते हैं, किसी और सिटी में वो वर्क करते हैं, तो कैसे मतलब कितना जरूरी, और उसकी क्या क्या प्रैक्टिसेस, और कैसे इनिशियली स्टार्ट करना चाहिए एक कम्युनिटी रेडियो में अगर वर्क करना है तो? जी, आपके आसपास की कम्युनिटी के लिए बना है रेडियो, तो कम्युनिटी जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि दे आर योर प्राइमरी लिसनर्स। कम्युनिटी रेडियो की जो रेंज रहती है वो आपके स्टूडियो से, मतलब अब अभी मैं पीसीटी में बैठी हूँ, तो इस बिल्डिंग के अराउंडिंग 10 to 15 किलोमीटर तक जो आप ट्रांजिस्टर से सुनते हो, रेडियो सेट पे रेडियो सुनते हो, तो उसमें वो सुनाई जाता है। तो बेसिक जो आपका ऑडियंस है, मेरे आसपास का 10 to 15 किलोमीटर्स का जो ये है एरिया है वो है। उसके बियॉन्ड जाने के लिए हमने एप्लीकेशन डेवलप किया है गूगल प्ले स्टोर पे, तो वो तो ग्लोबली फिर सुना जाता है रेडियो। इन्फिनिटी में भी अभी जो पार्टिसिपेशन है वो ग्लोबल लेवल का है। यहाँ पे मुंबई, पूना और कोकण, वहाँ वहाँ से पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ पे हो चुकी है। तो फॉर्चुनेटली हम बाउंड्रीज के बाहर भी जा रहे हैं, पर बेस जो है वो आसपास के कम्युनिटी रेडियो का है। और ये मैं बताना चाहूंगी कि पीसीएमसी में, पिंपरी चिंचवड में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें रेडियो के लिए मिला है। इसका कारण क्या है कि इसके आसपास की अगेन कम्युनिटी, ये पिंपरी चिंचवड के एरिया को जो है मिनी इंडिया करके बुलाते हैं। तो सारे समाज यहाँ पे घुल मिल के रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे पता होने चाहिए, ये सारे कवर करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो है तो समाज का है, उसे कोई भी लेबल नहीं है। या मैं सिर्फ हिंदू कल्चर का करूँ, या मैं सिर्फ मुस्लिम कल्चर का करूँ, या फिर सिर्फ कॉन्वेंट जो कंटेंट है वो डेवलप करूँ, ऐसे नहीं है। यहाँ पे कोई भी आके प्रोग्राम कर सकता है। तो ये आपको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होती है कि कम्युनिटी रेडियो कहीं भी एक साइड झुके नहीं। और इसलिए सारे आपको जो आपके कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी रहता है। हमने अभी तक जो, अभी मैं इन्फिनिटी का ही उदाहरण देती हूँ, क्योंकि अभी वो सब एक्टिविटीज चल रही होती है। यहाँ पे हमने देखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा है हमारी एरिया में, पिंपरी चिंचवड में। तो दे आर टारगेट ऑडियंस एंड टारगेट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। तो स्कूल टीचर्स है, स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए कंटेंट जनरेट करना है, और वो उन्हीं से जनरेट करवाना है। तो उन्हें क्या अभी जरूरत है, मतलब स्कूल के बच्चों को ऐसा कौन सा टॉपिक है जो नहीं जा रहा है स्कूल में से, या फिर स्कूल में सिखाया जा रहा है, पर वो इंटरेस्टिंगली हम कैसे और सिखा सकते हैं, रेडियो के साथ उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए उनका स्टडी अलग किया जाता है। उसके बाद हमारा जो एरिया है वो एंटरप्रेन्योर्स का है, यहाँ पे एमआईडीसी है। तो ये एक अलग क्राइटेरिया हो गया कि उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर नए बच्चों के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी प्रोग्राम प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए उनकी क्या जरूरतें हैं,
कि एंटरप्रेन्योर्स की जो स्टोरीज है वो बच्चों तक पहुंचे, और बच्चों का जो नॉलेज है वो एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचे। तो उनके लिए अलग फिर कंटेंट हमने डेवलप किया है। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स की भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमारे एरिया में है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कंटेंट डेवलप करना है ताकि वो भी यहाँ पे जुड़ सके। और उसके बाद जो आती है वो एक कॉमन कम्युनिटी, जो कि एंटरप्रेनर भी नहीं है, अभी वर्किंग भी नहीं है, सीनियर्स भी नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी जो है समय सेकेंड इनिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिटी है। तो उनके लिए भी कंटेंट डेवलप करना है। होम मेकर वुमेन्स है, उनके लिए भी कंटेंट डेवलप करना है। तो ये है मेरे आसपास की कम्युनिटी। ये अगर आप देखें तो हर एक टाउन में, हर एक सिटी में ऐसे ही कम्युनिटी रहती है। जहाँ पे हम शहरों की बात करते हैं, अगर आप गांव में जाओ तो वहां पे ये बहुत मैटर करता है कि उस कम्युनिटी को आप जाने। कोई कोई रेडियोज जो है वो ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं, तो उनका कल्चर, उनकी नेसेसिटीज, उनके लिए प्रोग्राम बनाना, वो बहुत ही अलग तरीके से फिर सारा जो है सोचना पड़ता है। कोई कोई जो है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है आसपास में, तो वहां पे जो प्रोग्राम्स चलेंगे वो खेती बाड़ी पे ही चलेंगे, क्योंकि वो अलग नॉलेज उनकी जरूरत ही नहीं है, या फिर अलग काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट की उनको जरूरत नहीं है। उनको क्या जरूरत है कि आप खेती के बारे में बताओ, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताओ, अभी जो यंगस्टर्स है जो खेती कर रहे हैं उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताओ। जो गानों का अगर हम यहाँ पे विचार करें तो खेती करते करते समय कई जो जिसे हम मराठी में लोकगीत कहते हैं, तो वो गाए जाते हैं, बहुत बहुत पुराने जमाने से गाए जा रहे हैं। तो वो है कि जैसे मैंने कहा कि कल्चर आपको वो संभाल के रखना है, तो ये आप वहां पे कर सकते हो। तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको आपकी कम्युनिटी पता होगी, और सारे कम्युनिटी के जो कैटेगरीज है जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया वो आपको पता होंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे सबके लिए करना है। किसी एक को आप पकड़ के चलोगे तो फिर आपका कम्युनिटी रेडियो सस्टेन नहीं हो पाएगा और बढ़ेगा भी नहीं। ओके। इसी से रिलेटेड फिर एक और ऐसे सवाल है कि या जैसे आपने कहा कि कम्युनिटी से ही हम लोग लेकर आते हैं, वही गेस्ट होते हैं, वही परफॉर्म करते हैं। अब जी। इसमें कैसे होता है, बिकॉज वो शायद उस मे बी रेडियो के और या फिर वो प्रेजेंटर नहीं है, अब उनको कैसे आप फिर पुल करते हो सो दैट, या उन्हें कैसे थोड़ा एक्सपर्टी देते हो, इफ यू कैन टेल विद सम एग्जांपल जो आपने फेस किया होगा, वो कैसे बात करवाते हैं उनसे माइक के जी सामने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी कहा ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रहता। आप क्या सीखे हो, कितना सीखे हो, या फिर आपकी आवाज मीठी है या फिर कड़वी है। आवाज तो सारी मीठी होती है, कड़वी तो कोई रहती नहीं है, ये पहली बात। पर अलग अलग ट्रॉमाज रहते हैं हमारे दिमाग में कि मेरी आवाज मतलब सुनने के लिए अच्छी नहीं है, ये हम ही कहते हैं, हमने ये सुना है। तो ये नहीं है। तो ऐसे अलग अलग साइकोलॉजी के अलग अलग विचारों के कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, तो उनके साथ डील करना, ये भी जो अभी आपने इंटर्नशिप मैं बता रही थी कि स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, तो ये है ना कि आप मैन पावर आपकी या फिर आपका रिसोर्स जो है, जो भी आपके सामने आ रहा है, उसे हैंडल कैसे करते हो, वो भी आपको सीखने के लिए मिलता है। तो ये आप कहीं पे भी जाओ, आप किसी बड़े मीडिया हाउस में भी जाओ, तो भी आपको यही करना पड़ता है। आप कम्युनिटी रेडियो में हो तो भी आपको ये करना पड़ता है कि उन्हें कंफर्ट लेवल देनी है। अभी हम दो प्राइवेट जो एफएम या फिर जो भी कमर्शियल मीडियाज अभी चल रहे हैं, तो वहां पे देखते हैं कि सारे जो रहते हैं एक्सपर्ट रहते हैं, या फिर ऐसे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं कि जिन जो जानते हैं कि मैं पॉपुलर हूँ और मुझे लोग देखेंगे सुनेंगे। यहाँ पे जो मेंबर्स आते हैं ना, वो सारे डाउट्स लेके आते हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है उनके मन में कि कैसे होगा, क्या होगा। स्टूडियो पहली बार देखते हैं, तो फिर माइक के सामने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कुछ अलग होने वाला है। तो ये सारे विचार उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि व्हेन दे एंटर्ड इन योर रेडियो ऑफिस, तभी से
आपको वो कम्युनिटी वाला फील उन्हें देना जरूरी है। तभी से मतलब जब जैसे आप उन्हें वेलकम करते हो ना, उसी से वो कंफर्ट होना शुरू होते हैं। वो तो हम भी फेस करते हैं कि किसी भी ऑफिस में जाए, अगर आपको खुल के कोई वेलकम करे, आप जान पहचान के नहीं हो तो भी खुल के आपको वेलकम किया जाए, तो उसी वक्त आप थोड़ा रिलैक्स हो ही जाते हो, 10% टेंशन वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जब आप बताते हो कि ये रेडियो आप ही के लिए है और आपका ही है, तो जो दूसरा परसेंटेज है टेंशन का, वो थोड़ा फिर वहां पे कम हो जाता है। उसके बाद मेरा मतलब इन्फिनिटी के जो पूरी टीम है उनका एक हर टाइम का एक ही कहना रहता है कि जैसे भी हम इंट्रो करते हैं कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताइए, वो रेडियो पे कैसे जाएगी वो हम आपको बताएंगे। तो वहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो कि आप बिंदास रहिए, आप बस कंटेंट शेयर कीजिए या फिर आपकी कॉन्सेप्ट शेयर कीजिए, उसे आगे कैसे लेके जाना है तो हम साथ में आपको लेके चलेंगे। ऐसे नहीं है कि ये ऐसे है और ऐसे आपको करना है और इसमें ये नहीं होना चाहिए, आपको फंबल नहीं करना है, स्टूडियो है अच्छे से रहना है। नो तो ये सारी स्टेप्स है कि उनको आप फैमिलियर कराओ स्टूडियो से, अपने एम्बियंस से स्टूडियो के, क्योंकि उनके लिए अलग रहता है। एक रूम है, एकॉस्टिक है, वहां पे कोई बाकी आवाज नहीं आ रही है, आप अकेले बैठे हो, आपके सामने माइक है, तो ये कॉमन पीपल के लिए रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रहती। ये हमारे जैसे जो लोग हैं वो स्टूडियो में बैठते हैं 24/7, तो उनके लिए नया नहीं रहता। पर जो कम्युनिटी आपके पास आ रही है उनके लिए ये बहुत ही नया, बहुत ही स्पेशल वाला एक्सपीरियंस रहता है। तो उन्हें वो उसका आनंद लेने के लिए आप उन्हें मोटिवेट करो, ना कि आप उन्हें टेंशन दो। तो उन्हें फैमिलियर करवाओ, उसके बाद उनकी कंसेप्ट जान लो, उन्हें अच्छी तरीके से वो डिजाइन करके दो, और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस ले लो। जो भी है, स्ट्रीट टॉक है, ड्रामा है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी हम जो होस्ट रहते हैं वो भी कम्युनिटी से ही अरेंज हो, इसके लिए पूरा जो है प्रयास करते हैं। और जो फिर गेस्ट भी है तो वो भी बिल्कुल कम्युनिटी में से ही रहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उनको थोड़ा कंफर्ट में लाने की जरूरत होती है। और एक्सपीरियंस ऐसे है कि एक बार एक विजिट में अगर आपको वो कंफर्ट लेवल देना पॉसिबल हो हुआ है, तो फिर बाद में जब वो आते हैं ना, दूसरी टाइम जब वो एंटर करते हैं रेडियो में, तो ऐसे उन्हें लगता है कि यस, रेडियो अपना ही है। तो दूसरी टाइम कोई भी टेंशन उनके दिमाग में नहीं रहता। ये आपको अचीव करना पड़ता है, और ये हर एक इंसान के मतलब बारे में है। कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं। अगर आपका फुटफॉल डेली 10 to 15 पीपल का है, तो वो सारे पीपल को, सारे लोगों को आपको यही ट्रीटमेंट देनी होती है। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो उनके साथ थोड़ा आसान जाता है, क्योंकि वो सारी प्रोसीजर जानते हैं, या फिर अलग कुछ ट्रॉमा उनके दिमाग में नहीं रहता। पर जब नए लोग आते हैं, और कम्युनिटी रेडियो में वही नए लोग आना जरूरी है, एक्सपर्ट्स और कम्युनिटी मेंबर्स, उनका बैलेंस रखना आपके ब्रॉडकास्टिंग में, आपके प्रोग्रामिंग में, ये बहुत जरूरी रहता है। तो ये सारी चीजें इंटर्न्स को यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है कि हाउ टू डील विथ पीपल। सारे एक जैसे नहीं रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई कोई उनकी उनकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी रहती है पर प्रेजेंट नहीं कर पाते, और प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर से नर्वस हो जाते हैं। पर आपकी कंफर्ट लेवल देने से वो सारा स्मूथ प्रोसेस हो सकता है, वो होना चाहिए। ओके। ओके मैम, फिर इसी से रिलेटेड एक तो सवाल है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो इनटू कम्युनिटी रेडियो? मतलब ऐसे क्या ओके इंस्पायर्ड? मेरी शुरुआत कम्युनिटी रेडियो से ही हुई है। एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन है वो MBA HR मैंने डिग्री ली है। पर सिर्फ डिग्री ली है, मैंने 2 जॉब किए पर वहां पे मन नहीं लगा। तो उसके बाद फिर रेडियो पे मैंने स्विच किया है। मैं राइटिंग पहले से करती हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, एंकरिंग के प्रोग्राम्स किए हैं। तो ये पता था कि मेरे पास थोड़ी सी अच्छी आवाज है, तो कहीं पे ट्राई कर सकते हैं। तो पहली तो बात, मैं मेरी स्टोरी और मेरा आवाज लेके विद्यावानी में गई थी, पूना यूनिवर्सिटी में।
तो मैं कम्युनिटी मेंबर करके गई थी कि मुझे मेरी 2 स्टोरीज थी और वो मुझे रेडियो पे सुनानी थी। तो वहां पे मुझे स्टोरीज मेरी सुनने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो वहां पे मुझे इंट्रोड्यूस हुआ कम्युनिटी रेडियो और मैंने वहां पे प्रोग्राम असिस्टेंट करके ज्वाइन किया। मेरी स्टोरीज सुन के जो है वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी दी एंड देन आई स्टार्टेड माय जॉब इन कम्युनिटी रेडियो। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में मैं जब गई तो वहाँ पे भी वैसे ही अनाउंसमेंट सुन के गई थी कि उनके पास लाइव आर्जिंग के लिए ऑडिशन टेस्ट होने वाले थे। तो ऑडिशन दी। बेस ये था, एक बार रेडियो से जुड़ने के बाद फिर बाकी कहीं मैंने देखा नहीं। जैसे मैंने सीवी में भी लिखा है कि फ्रीलांसिंग अलग अलग एरिया में करती हूँ, पर रेडियो तो अभी सोल बन चुका है। क्योंकि जो स्किल्स रिक्वायर्ड मैंने कहे ना कि वो आप एकेडमिक्स में नहीं सीख पाते। एकेडमिक्स में आप ये स्किल्स रिक्वायर्ड है ये बता सकते हो, वो जनरेट कैसे करने हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि जब आप लिखते हो ना, मैं यहाँ पे जो हमारे इधर इंटर्न्स आते हैं उनको भी बताती हूँ कि प्रोमो लिखना है ना आपको, एक छोटा सा या फिर एक स्क्रिप्ट लिखनी है ड्रामा की, तो जो भी दिमाग में आता है आप लिखिए। पहले 5-6 पेजेस आप लिखेंगे तब आपको 1-2 पेजेस का कंटेंट मिलेगा। ये जो स्किल्स है वो थोड़े से मुझे लगे कि मेरे पास लाइक बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखने के बाद आ चुके थे। और उसी के साथ साथ फिर रेडियो के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे बनने लगे। ऑल ऑल इंडिया रेडियो पे जो मेरा लाइव आर्जिंग का एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। कम्युनिटी रेडियो में मैंने ये सारी चीजें सीखी जो मैंने अभी आपको बताई। तो उसका जो इंटरेस्ट था वो था कहीं पे इनबॉर्न इंटरेस्ट, और उसे फिर तराशा गया कम्युनिटी रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो में लाइव अर्जिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। और अब जब मैं कम्युनिटी रेडियो में प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ, तो ये अलग अलग इंसानों के साथ डील करने का और स्वीटली डील करने का जो तरीका है वो भी एक स्ट्रेंथ बनी हमारी टीम की, सारी टीम की। अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ वैसे ही सारे ही टीम मेंबर्स जो मेरे हैं, मेरे साथ विराज सवाई है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, विद्या रानी है जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है। तो तीनों की जो वेवलेंथ है सेम है, और तीनों के जो स्वभाव है सेम है, तीनों की जो ट्रीटमेंट है जो हम कम्युनिटी को देते हैं वो सेम है। तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होते होते फिर अभी कम्युनिटी रेडियो में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और आगे भी इसी में काम करने के लिए सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें आती है कम्युनिटी रेडियो के लिए। आप जब काम करते हो, एक तो आप आर्टिस्ट आपको होना होता है, जैसे अभी कहा मैंने कि ये आर्टिस्टिक काम है ये सारे। और दूसरा सोशल एंगल आपके दिमाग में हमेशा ये टिमटिमाता रहना चाहिए कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकती हूँ, ना कि खुद के लिए। क्योंकि अगर मैं खुद के लिए प्रोग्राम करना चाहूँ तो मैं सिर्फ यंगस्टर्स के लिए प्रोग्राम करना चाहूंगी, मैं बोर हो जाऊंगी सोशल वर्क के कवरेज करने करने के लिए। पर अगर सोशल एंगल भी मेरे दिमाग में है तो आप कम्युनिटी रेडियो के लिए बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्रिएटिविटी का भी मजा ले सकते हो, अलग अलग इंसानों के साथ मिलजुलने का भी मजा ले सकते हो, और उसी के साथ साथ सोशल एंगल भी आप आपका मेंटेन रख सकते हो। कम्युनिटी रेडियो सोशल एस्पेक्ट्स में बहुत 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 बढ़िया काम करता है, और जहाँ पे जरूरत है वहाँ काम करता है। ओके, सो मैम, एक फाइनल सवाल है कि विद दिस इंटरनेट कमिंग अहेड, आपने भी बताया कि हमने एप्स और ये सब भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है फॉर प्रमोटिंग ऑल ऑफ दिस। अब ये पूछना है कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी और स्कोप्स ओपन हुए होंगे। लाइक पहले जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही वो रहता था, अभी उसके बियॉन्ड हम जा रहे हैं। तो वही है हम्म, कि मे बी द कमिंग टाइम्स और भी कुछ ऐसे होते रहेगा। तो कैसे अपॉर्चुनिटीज और स्कोप है इस चीज का? कम्युनिटी रेडियो में। ओके,
कम्युनिटी रेडियो के बारे में बताना चाहूंगी कि अभी जैसे आप देखते हो कि हमारे जो माननीय पंतप्रधान जी हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भी पिछले 5 सालों में भी बहुत सारे नए रेडियोज इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में। और ये आगे भी होते रहेंगे। कम्युनिटी रेडियो की जो लाइसेंस है, मैंने 3 संस्थाएं तो बताई आपको कि जो अप्लाई कर सकते हैं और जिनको लाइसेंस मिल सकता है। तो वैसे अभी स्टेशंस की जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स है, वो बढ़ रहे हैं, इजीली लाइसेंस अप्रूव्ड हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। तो आपको स्कोप तो बहुत ज्यादा है कम्युनिटी रेडियो में। जो मैंने कैटेगरीज अभी पोस्ट आपको बताई कि अलग अलग पोस्ट पे आप काम करते हो। बेसिक से शुरुआत करो तो आरजेइंग का तो बेसिक पोस्ट तो रहता ही है, जहाँ पे आप एज अ आरजे जा सकते हो। पर जैसे मैंने कहा कि आप कम्युनिटी रेडियो में जा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये बात तो फिक्स होनी चाहिए कि मुझे जो भी करना पड़े तो मैं करूंगा, तभी आप सस्टेन हो पाओगे कम्युनिटी रेडियो में। वहां पे मैं सिर्फ आरजेइंग करूंगी तो फिर मैं आरजे की चेयर पे ही बैठूंगी, ऐसे आपको अप्रोच फिर वो काम नहीं आता। अगर आपको आउटडोर रिकॉर्डिंग्स के लिए जाना है, कोई न्यूज कवर करनी है, कोई इवेंट कवर करना है, तो भी आपको जाना पड़ता है वहां पे। अगर आपको किसी के मतलब कोई भी काम हो, स्क्रिप्ट सिर्फ सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग का काम हो, कोई अलग आरजे बन रहा है, तो उसे स्कोप देना बहुत जरूरी है। अपनी चेयर हटा के उन्हें वहां बैठाना है। वो एलिजिबल है नहीं तो वो अलग बात है, उन्हें एलिजिबल हमें कराना है। तो ये जो टैंट्रम्स रहते हैं ना कि मेरी ये पोस्ट है और मैं मेरी पोस्ट का ही काम करूंगा, ये कम्युनिटी रेडियो में काम नहीं आता। आपको सबके लिए काम करना है और सबके साथ होकर करना है, तभी आप सस्टेन हो पाते हो। तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खुलेंगी। आप एक्सपीरियंस जैसे जैसे आरजेइंग का लेते हो, वैसे वैसे आपको इन सारी डिपार्टमेंट्स का भी अंदाजा आ जाता है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आप एज अ मार्केटिंग टीम में काम कर सकते हो, आप कंटेंट डेवलपमेंट के टीम में काम कर सकते हो, आप प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हो, आप स्टेशन इंचार्ज हो सकते हो। स्टेशन इंचार्ज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत देर बाद आती है, क्योंकि बहुत सारी मतलब सारी ही चीजें आपको रेडियो के बारे में देखनी पड़ती है। तो ऐसे अलग अलग पोजीशंस पे आप जरूर जा सकते हो, बट जब शुरुआत करोगे तब सारी पोजीशंस पे काम करने का और जो भी काम आए वो करने के लिए आपको तैयार रहना है। ओके। मैम कुछ एक स्टूडेंट का सवाल था कि जैसे इनिशियली अभी टू बिगिन विद आप कुछ टिप्स या कुछ ऐसे बताना चाहेंगे, या मे बी एन असाइनमेंट और समथिंग विच दे कैन प्रैक्टिस टिल द टाइम इंटर्नशिप या ये ज्वाइन नहीं करते। ओके। तो इसके लिए तो मैं टिप्स तो दूंगी और ओपन अपील भी करूंगी कि अभी पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी खुली है, तो आप जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक्स तो शुरू हो जाएगा, पर कम्युनिटी रेडियो ओपन है। तो आप कभी भी स्टूडियो देखना चाहो या फिर इन सारे फॉर्मेट के बारे में डिटेल में जानना चाहो, ऐसे में नहीं कहूंगी कि आप इंटर्नशिप के लिए ही आओ, एक दो आप ऑब्जर्वेशन ड्यूटीज भी कर लो। एक पूरा दिन आप कम्युनिटी रेडियो में बिताओगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप जरूर विजिट करिए। यही नहीं, सिर्फ इन्फिनिटी नहीं, तो जो भी आपके आसपास के कम्युनिटी रेडियोस हैं आप जरूर विजिट करिए। आप अगर फिर से मैं, इट्स नॉट कंपैरिजन, इट्स रियलिटी, कि अगर आप प्राइवेट एफएम का स्टूडियो देखने जाओगे तो वहां पे प्रोसीजर रहेगी, या वहां पे इजी एक्सेस शायद नहीं मिल पाएगा। पर कम्युनिटी रेडियो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लो तो आपको इजीली अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है। आपको स्टूडियो का वर्किंग कैसे चलता है वो देखने के लिए मिलता है। आपके पास आपकी कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लेके गए वहां पे, और जस्ट आप बोल रहे हो कि मुझे मेरी वॉइस टेस्ट लेनी है, तो आप ले सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ये है मतलब कल म्हणतात त्याला मराठीत, कि आपका इंटरेस्ट किस में जा रहा है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छा कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, या फिर मैंने जैसे कहा कि आप वॉइस ओवर अच्छा कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं जो भी
पर्सन यहाँ पे आते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको ट्राई करनी है तो आप ऑब्जर्वेशन के लिए भी कम्युनिटी रेडियो में, कोई भी कम्युनिटी रेडियो में कभी भी जा सकते हैं। और मतलब जो अभी आपने असाइनमेंट के बारे में पूछा, तो असाइनमेंट्स भी यही रहेगी कि आपकी कॉन्सेप्ट एक आप डेवलप करो और वो रेडियो पे आपको प्रेजेंट करनी है, ऐसे दिमाग में रख के आप जाओ, तो फिर आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ये सारे जो अभी मैंने स्टेप्स बताए एक प्रोग्राम प्रोडक्शन की, कंटेंट डेवलपमेंट है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, एडिटिंग है, और उसका रेडी टू ब्रॉडकास्ट हम जिसे कहते हैं, तो उस स्टेप तक जाना है, वो आपके ही प्रोग्राम में आपको सब सीखने के लिए मिलेंगे, एक ही प्रोग्राम में। तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे जरूरत है सिर्फ आपके इंटरेस्ट की और विलिंगनेस की। तो आप जरूर आइएगा, जब भी आपको टाइम है तब कम्युनिटी रेडियो आपको जरूर मदद करेंगे। थैंक थोड़े यू से सो टाइम है तो मैं इन्फिनिटी का जो कंटेंट डेवलपमेंट हुआ है अभी तक का, उसके बारे में थोड़ा सा मच। प्लीज शेयरिंग प्लीज। करना चाहूंगी, ताकि जैसे मैंने अभी सब्जेक्टिव कहा ना कि ये कंटेंट क्रिएट हो सकता है, तो हम हमारे यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी पे कौन सा कंटेंट क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा एक बताऊंगी। है टाइम? यस यस प्लीज। हो सके। ओके, तो उसके लिए मैंने लिस्ट निकाली है, किसी कोई छूट ना जाए। कम्युनिटी रेडियो, अभी हम अवार्ड्स अलग अलग देखते हैं कि प्राइवेट एफएम के अलग अलग अवार्ड्स रहते हैं, तो उस वहाँ पे उन्हें रिकग्निशन मिलता है। तो कम्युनिटी रेडियो, जैसे कि मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेडियोज रहते हैं, तो रिकग्निशन भी हमें गवर्नमेंट के ही जो लेवल है उस पे मिलता है। तो नेशनल अवार्ड्स रहते हैं कम्युनिटी रेडियो के लिए, वो 4 कैटेगरीज में रहते हैं। उससे उसमें पहली कैटेगरी जो है वो है थीमेटिक अवार्ड्स की। थीमेटिक अवार्ड्स मतलब जो आपके प्रोग्राम्स इंफॉर्मेटिव बने हैं, यानी अभी इन्फिनिटी में हमने अलग अलग विषयों पे थेमेटिक प्रोग्राम्स किए हैं। एक जो है अर्थात मनी मैटर्स, अर्थात इट्स अ मराठी नेम, अर्थात मनी मैटर्स, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात करता है। एक प्रोग्राम है खुल के मुस्कुरा दे तू, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करता है। सगळ्यांसाठी विज्ञान, मतलब सबके लिए विज्ञान, ये एक साइंस सीरीज है, बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया है उसमें साइंस। और एक है वळणवाटा, जो कि ट्रेकिंग के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देती है। एक है वेलनेस 360 डिग्री, जो वेलनेस के बारे में बताती है। और है आधी केलेची पाहिजे, जो हमने एनजीओज के साथ की है अभी तक। 47 एनजीओज के साथ हमने ये इंटरॅक्टिव्ह प्रोग्राम किया है। आधी केलेची पाहिजे से 47 कार्यक्रम झाले आहेत, म्हणजे सो 47 प्रोग्राम्स इसके बने हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स मैंने अभी बताए वो थेमेटिक प्रोग्राम्स है, जहाँ पे हमने स्ट्रेट टॉक किया है या फिर इंटरव्यूज लिए हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम। मतलब आपके आसपास की जो कम्युनिटी है, जैसे मैंने अलग अलग क्लासिफिकेशंस आपको पहले ही बताए, तो इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए या फिर इन्हें एंगेज करने के लिए कौन से इनोवेटिव प्रोग्राम्स आप डेवलप कर रहे हो, ये दूसरी कैटेगरी है। मतलब इंटरव्यू तो है ही या फिर ड्रामा तो है ही, पर उसमें नया क्या है ताकि कम्युनिटी को वो अट्रैक्ट करे। तो वो अगर आपकी इनोवेटिव कोई कॉन्सेप्ट उन्हें पसंद आई तो उसमें आपको अवार्ड मिल सकता है। तो उसमें इन्फिनिटी का एक एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहूंगी कि इन्फिनिटी ने 1 आर आरजे, ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप की है। 1 आर आरजे का मतलब 1 घंटे के लिए इन्फिनिटी का आरजे। तो ये आरजे कोई भी बन सकता है, जो भी लिस्ट मैंने बताई कोई भी बन सकता है। सिंपली आपको एक गूगल फॉर्म रजिस्टर करना है, फिल करके रजिस्टर करना है, और उस गूगल फॉर्म में आपको बताना है कि आप कौन से टॉपिक पे सारे लिसनर्स के साथ गॉसिप करना चाहते हो, आपके पसंदीदा टाइप, जो आपके पसंदीदा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको बताना है। और उसी के साथ साथ आपको आपके फेवरेट गानों की लिस्ट देनी है। आप आरजे करके हम आपको आरजे के
आपको आरजे करके हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आरजे क्या करता है, हमें सबको पता है कि गॉसिप करता है और गाने बजाता है। तो वही बस 1 घंटे में ये होगा। आप आरजे होंगे, टॉपिक आपका होगा, गाने आपके पसंदीदा होंगे, और हम जो है आपको को होस्ट करेंगे, और ये शो जाएगा लाइव। तो ये लाइव शो है। ये कॉन्सेप्ट कम्युनिटी में बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, और इसके भी हमने अभी तक 70 शोज किए हैं। इसमें जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो मुंबई, पूना, पूना का मतलब कोंढवा भी, कात्रज भी, वहां से लोग आके गए हैं। और हाल ही में कोकन से भी एक जो लेडी थी वो आके गई, शी वॉज योगा ट्रेनर। तो उन्हें मैंने बताया कि ये 1 घंटे का ही प्रोग्राम है, तो आप इतनी दूर से 3-4 घंटा ट्रैवल करके आएंगी इस शो के लिए। तो शी वॉज रेडी और शी वॉज एक्साइटेड कि नहीं, मुझे आना है और मैं आऊंगी। एंड शी वॉज हियर एट 8:30 AM शार्प। सो ये उस कॉन्सेप्ट का इन्फ्लुएंस जो है वो है कि वन आर आरजे जो है ये इनोवेटिव कंसेप्ट हो गई, कि कम्युनिटी को ऐसे इजी एक्सेस कहीं पे नहीं मिलता। 1 घंटे आप स्टूडियो में बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, और उसके लिए कोई भी क्रिटिकल प्रोसीजर नहीं है। ये एक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी रेडियो पर ही मिलेगा, बाकी कभी कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इजी रीच है ना आपका, कि आपके लिसनर्स बिल्टअप हो चुके हैं और वो आपको सुन रहे हैं। और कोई आपको ये नहीं पूछ रहा है कि आपने कितने प्रोग्राम्स किए हैं पहले, आपने माइक पकड़ा है क्या हाथ में, नहीं पकड़ा है, या फिर गाने कितने सुने हैं। नहीं, कोई भी सवाल हम हमारी तरफ से नहीं करते, क्योंकि हमें आपको आगे लाना है। और वो 1 घंटा आप इंजॉय करिए। और जो आपका सपना है कि हम सारे जो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं सबके हम फीडबैक लेते हैं वीडियो में, ताकि वो प्रूफ रहे। क्योंकि सारे उसमें से बहुत बहुत 70% लोगों ने कहा है कि सपना था कि रेडियो का स्टूडियो देखे कि कैसे होता है, कैसे बात करते हैं, सिस्टम कैसे रहती है। और वो सपना इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरा हो रहा है। तो उनका दिन बन जाता है, उनके लिए ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। और उनके जो रिलेटिव्स है, अब जब हम कहते हैं ना कि रेडियो कोई नहीं सुनता है, हम बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि अब कौन सुनता है रेडियो। तो उनके लिए आंसर है कि रेडियो सुना जा रहा है। बस आपको, आपने शायद अभी तक ट्यून नहीं किया, तो आप ट्यून करिए। अगर आपको कुछ अच्छा सुनना है, इंफॉर्मेशन भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो रेडियो इज द ओनली मीडियम अभी के इसमें भी। कि आप भी ऐसे कभी एक्सपीरियंस किया होगा आपने भी, कि आपका पसंदीदा गाना स्पॉटिफाई पे प्ले करना, और रेडियो पे अगर आपको वो अचानक से सुनाई दे, तो आप कितना खुश होते हो। क्योंकि आपका तब मूड नहीं रहता शायद गाना सुनने का, पर फिर भी वो फेवरेट गाना रेडियो पे बजता है, तो यू गेट एक्साइटेड और यू गेट फ्रेश, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है स्ट्रेंथ रेडियो की है। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो में लिसनर्स बिल्डअप करना, ये रह गया पॉइंट कि लिसनर्स बिल्डअप करना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। क्योंकि प्राइवेट एफएम की जैसे बड़े बड़े इवेंट्स कम्युनिटी रेडियो के नहीं रहते, क्योंकि उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, और उसका वैसा मोटो नहीं रहता कि तामझाम करे और बहुत सारा मॉब जमा करे और फिर सेलिब्रिटीज को लाए। नहीं, कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी का है, तो वो जो ऑडियंस है कम्युनिटी ही आपकी डेवलप करेगी। तो ये जो कम्युनिटी लिसनर्स बिल्डअप करने का काम है ना, ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स बहुत उसमें आपको मदद करती है। मेरा शो आज जा रहा है, ऐसे में जब मेरी सर्कल में बताती हूँ, तो मैं आराम से 70-80 लोगों तक वो न्यूज़ जो है, वो पोस्टर जो है आपके प्रोग्राम का, वो मैं रीच आउट करती हूँ। ट्राई करती हूँ कि बहुत सारे लोग इन्फिनिटी सुने। क्यों? क्योंकि मैं इन्फिनिटी पे प्रोग्राम करने जा रही हूँ, रेडियो पे प्रोग्राम करने जा रही हूँ। तो वहां पे रेडियो का जो रीच है
और लिसनर है वो बढ़ जाता है। एक दिन में आपको 60 to 70 नए लिसनर्स मिलते ही मिलते हैं जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो। और उस 60-70 लिसनर्स में से आपको 20 लिसनर्स ऐसे मिलते हैं जो आपका कम्युनिटी रेडियो विजिट करते हैं कि क्या है देखने के लिए मिलेगा, और इतना इजी एक्सेस है तो हम भी जाके देखेंगे। और जैसे वो एंटर करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें वापस लाना है। तो वो किसी भी ओकेजन पे आप लाओ, प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए लाओ या फिर आप कोई अलग गैदरिंग कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, तो उसके लिए लाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम में ये वंदना राज्य का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। उसके बाद आजी आजोबांच्या गोष्टी म्हणून एक मराठी आपला सगळा कॉन्टेंट मे बी मेनली मराठीमध्ये असतो कारण आपली कम्युनिटी मराठी आहे। तर आजी आजोबांच्या गोष्टी म्हणजे दादा दादी की स्टोरीज, ऐसे हमने किया था शो। वो क्यों किया था, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स, फिर से मैं कह रही हूँ कि उनके लिए वो प्रोग्राम था और बच्चों के लिए भी था कि उन्हें स्टोरीज सुनाना बहुत पसंद होता है। अभी भी हम देते हैं कि दादी स्टोरी सुनाती है, कहानी सुनाती है तो बच्चे सोते हैं। पर अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज रहती है तो नॉट नेसेसरी कि हर एक फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो। सिटीज में रहते हैं तो 3-3 जन का ही अभी फैमिली रहता है। तो फिर उनकी जो स्टोरीज है वो इसके बाद, मतलब अभी जो जनरेशन चल रही है ना ग्रैंड पेरेंट्स की, उसके बाद जनरेशन बहुत अलग लेवल पे बदल रही है। जो पुरानी स्टोरीज है या फिर उनकी खुद की स्टोरीज है वो कहीं पे प्रिजर्व होनी बहुत जरूरी है। तो उनका जतन होना बहुत जरूरी है। उनकी आवाज 70, 75, 65 एज की आवाज भी आपके पास रहनी चाहिए। तो इसी हेतु से ये प्रोग्राम शुरू किया था और हमने कहा था कि आपकी स्टोरीज आप बताएं, क्योंकि एस्टैब्लिश स्टोरीज तो सबको पता होती है, आपकी लिखी हुई स्टोरीज आप बताएं ताकि उन्हें वो ये ट्रिगर भी मिले कि मुझे लिखना है तो मेरी भी कोई कहानी मैं सुना सकती हूँ। हमने उन्हें कहा था कि आपके लाइफ का कोई भी इंसिडेंट है जो आप बता सकते हो तो आप स्टोरी फॉर्मेट में जरूर बताइए, वो स्टोरी रहनी चाहिए, वो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने मैं बताना चाहूंगी कि पहले ही इसमें, मतलब पहले कॉल में हमें 30 स्टोरीज मिली थी, 30 स्टोरीज। और वो भी ऐसे ही, मतलब मैंने यहाँ से कुरड़ी में से वो जस्ट एक अपील डाला था अलग अलग ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे। तो उसके आधार पर मुंबई, अगेन कोकण, वहाँ पे मराठवाड़ा और पूना में से तो थे ही। तो इन सारे रीजन से वो स्टोरीज आई। तो अपने आप वो एक ही प्रोग्राम में इन्फिनिटी का नाम इन सारे रीजन्स में हो चुका, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स है तो उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि रेडियो पे हमारी आवाज सुनाएंगे, मेरी कहानी सुनाएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात रहती है। तो वो जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं उनमें ये जो पोस्टर्स है या फिर प्रोग्राम है वो पहुंचाने के लिए वो खुद प्रयास करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो 30 स्टोरीज थी, तो 30 पीपल ने, आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो 30 पीपल ने 30 लोगों का स्टोरी शेयर किए हैं। तो ये अपने आप में एक आपके पास बैंक हो जाती है प्रोग्राम की भी और उसी के साथ साथ लिसनर्स की भी। तो ये एक अलग तरीका हमने ट्राई किया था। ये सारे एक्सपेरिमेंटल है और हमने ये बहुत चुन चुन के कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं कि ये हुए नहीं है पहले कहीं पे भी। तीसरा जो है प्रमोटिंग लोकल, मैं अगर ज्यादा टाइम के बाहर जा रही हूँ तो मुझे प्लीज रोकिएगा। नहीं, प्लीज गो चला अहेड। यस। तीसरा जो है प्रमोटिंग लोकल कल्चर प्रोग्राम। अभी जैसे मैंने कहा कि हम टाउन में रहते हैं, पीसीएमसी ऐसे एरिया है कि टाउनशिप भी है और हमारे आसपास विलेजेस भी है, तो ये मिक्सचर है यहाँ पे। तो उनका कल्चर आपको आपके प्रोग्राम्स के थ्रू दिखाना है। जैसे की अभी वारी चल रही है ना, पंढरीची वारी आता सुरू आहे। तर देहूपासून ते पंढरपूर पर्यंत, आळंदीपासून पंढरपुरीपर्यंत आपला वारीचा जो वारीची जी परंपरा आहे, 800 वर्षांपासून ही वारी सुरू आहे। 800 इयर्स चल रही है ये जो ट्रेडिशन है। तो
मेरे लिए अगर मैं पीसीएमसी में हूँ तो मुझे ये वारी कवर करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि अगेन ये लाइक हेरिटेज है ये हमारी सोसाइटी का, तो हम वो कवर करते हैं। पिछले साल भी हमने वारी का स्पेशल प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने संत ज्ञानेश्वर जी का जो हरिपाठ है तो वो हमने एक्सप्लेन किया था। इस साल हम आनंदी के संस्थान के साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो इस साल 20 दिन ये वारी चालू रहती है। 20 दिन का सफर रहता है। तो 20 दिन के 20 अलग अलग प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं। उसमें आनंदी से बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। सिंगर्स जो है, जो भजन कीर्तन करते हैं, उन सिंगर्स का रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो चुका है। उसके साथ साथ एक श्रुतिका रहती है हमारी। श्रुतिका मतलब ड्रामा, एक फैमिली ड्रामा रहता है। तो वो एक फैमिली ड्रामा वारी के ही थीम लेके हमने इसमें प्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने अगेन जो अभी वारी चल रहे हैं वारी में, तो उनके भी बाइट्स हमने वहां पे उस ड्रामा में मर्ज किए थे, ताकि वो एक इंफॉर्मेटिव भी ड्रामा बने और बहुत ही अच्छा वो प्रोग्राम हुआ था। तो ये हुआ है कल्चरल प्रिजर्वेशन का, जो हमने बोला था कि वो हमें जतन करके रखना है। और क्योंकि ये अब नहीं पता चलता, ये अभी 5-10 साल बाद पता चलेगा कि अरे 10-15 साल का ये कंटेंट हमारे पास है। और वो क्यों है? क्योंकि रेडियो ने वो रिकॉर्ड करके रखा है। अभी खेतों में गाए जाने वाले गाने हैं, बाद में सुनाई देंगे आपको लगता है? फॉर्चुनेटली सुनाई दे, पर जो पिछली बार गा चुके हैं लोग, अभी की जनरेशन, तो वो कहाँ प्रिजर्व करोगे आप? स्पॉटिफाई पे तो आएगी नहीं, या फिर कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म में वो नहीं आएंगे। यूट्यूब पे आ सकते हैं, पर वो एक चैनल रहेगा तो उनके जो एरिया है वो कवर करेगा। अगेन कम्युनिटी रेडियो यहाँ पे काम करता है, जैसे मैंने कहा कि मुंबई से भी है, पुणे से भी है लिसनरशिप पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी रेडियो के प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग विलेजेस के एक ही इसमें बैंक, मेरे पास सारे विलेजेस की बैंक रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी, या फिर यही एक नहीं रहेगा। तो ये लोकल कल्चर जो है आपको प्रिजर्व करना है। इसके बाद हम ट्राय कर रहे हैं कि यहाँ पे ना आपने सुना होगा, पता नहीं, जागरण गोंधळ हाँ। हा एक प्रकार आहे आपल्याकडे, ज्याच्यामध्ये गोंधळी खंडोबाची कथा सांगतात, म्हणजे शंकराची कथा सांगतात। अब इसमें क्या बोलते हैं हम, अंधश्रद्धा है, श्रद्धा है, वो हमारा पार्ट नहीं है। हम पूरा ये है उसमें हमें कि कंट्रोल करे आप, अगर आप कुछ गलत जा रहा है। पण ज्याला आपण आख्यायिका म्हणतो ना, की पुराने जमाने से जो स्टोरीज जो है वो सुनने के लिए मिलती है, तो वो कहानियां आप बिल्कुल भी कहानी के ही हिसाब से रेकॉर्ड करके रख सकते हैं, सुनाए सकते हैं। तर जागरण गोंधळींचा एक खूप मोठा वर्ग आपल्याकडे खूप पूर्वीपासून काम करतो। त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळी वाद्य वापरली जातात, वेगवेगळ्या कथा सांगितल्या जातात। तर त्या सुद्धा रेकॉर्ड करण्याचा आपला विचार आहे। त्याच्याच बरोबर शाहिरी परंपरा महाराष्ट्रातली खूप मोठी है। अपन शिवाजी महाराज की हम कहानियां सुनते हैं, तो उनका पोवाड़ा अभी सबको पता है। तो वो गाने वाले जो शायर है, तो उन्हें हम यहाँ पे लाने वाले हैं बाद में, क्योंकि उनकी भी ऐसी रेडियो की सीरीज अभी कहीं पे हुई नहीं है। हम्म। तो उनके लाने के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद हमने ऑलरेडी एक किया है, वो वन्ही तो चेतवावा करके एक प्रोग्राम है, जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स के ऊपर है। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हम सब लोग सुनते हैं, स्कूल से लेके बाद में कॉलेज तक हम रेगुलरली सुनते हैं, क्योंकि वो रहता है स्कूल में, बजता है। बाद में हमारा रिलेशन नहीं रहता, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी। पर वो सॉन्ग्स तो हमने सुने हैं, पर सॉन्ग्स के बैकग्राउंड में जो विचार है, तो वो भी हमने हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसे है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स, जैसे मैं नाम लूंगी चारुदत्त बुआ आफड़े, जो कि नेशनल लेवल के कीर्तनकार है। तो उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, और उसके बाद अनेक जो संस्कृत के अभ्यासक है, तज्ञ लोग हैं, उन्होंने इन गानों का जो विवेचन है
वो किया है, एक्सप्लेनेशन किया है, और उसके बाद गाने हमने प्ले किए हैं। ये गाने गाए हैं स्कूल के बच्चों ने। ये स्कूल्स है हमारे ही आसपास के एरिया से है। और बहुत खुशी हो रही है मुझे बताने में कि 16 स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मतलब 16 स्कूल हमने कवर किए हैं मतलब क्या, कि यहाँ पे एक जो रहता है वो समूह गीत रहता है, ग्रुप सॉन्ग रहते हैं, समूह गीत, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो है। तो एक एक सॉन्ग्स के लिए हमारे यहाँ पे जब आते थे बच्चे, तो वो 10 से 15 बच्चे रहते थे एक ग्रुप में, और उनके म्यूजिक टीचर्स रहती थी, या फिर उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते थे वो रहते थे। तो 16 स्कूल्स के बच्चे और टीचर्स यहाँ पे आके गए हैं, वो गाने रिकॉर्ड करने के लिए उनका पार्टिसिपेशन है। और ये प्रोग्राम कैसे बनता है, देखिए कि उसमें अभी 300 पीपल इन्वॉल्व है, 300 स्टूडेंट्स, हाँ सिर्फ स्टूडेंट्स, और एक्सपर्ट्स अलग है। तो ये हो गई उस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ, जो कि कल्चर को भी ये कर रही है, संभाल के रख रही है, और उसी के साथ साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट भी बढ़ा रही है। अब ये बच्चे जब सुनाई देते हैं रेडियो पे, तो एक सॉन्ग्स जो गाए हैं, 10-15 बच्चों ने गाया है, तो वो 10-15 बच्चे अपने अपने फैमिलीज में, अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं वो गाना, और वो रीच आपके कम्युनिटी का फिर बढ़ता चला जाता है। कम्युनिटी रेडियो की कंसेप्ट सभी सोसाइटी में पहुंचना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकते हो। और चौथा मॉडल है सस्टेनेबिलिटी मॉडल, अवार्ड रहता है, क्योंकि जो बात कर रही हूँ मैं उसी के साथ ये टॉपिक जाता है कि कम्युनिटी रेडियो को आप को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। एक तो आपको कम्युनिटी के पास जाना पड़ता है, उनको स्टूडियो में लाना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको वो पहुंचाना भी है। मतलब सिर्फ पार्टिसिपेंट आए और अपने प्रोग्राम किए, वो ब्रॉडकास्ट किए, नो, वो लोग कितने सुन रहे हैं वो भी आपको देखना है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस रहते हैं कम्युनिटी रेडियो में, क्योंकि ग्लैमर नहीं है यहाँ पे, जो कि आपको मतलब ये करे कि मेरा पोस्टर अभी चल रहा है तो वो टीवी पे आए, नहीं आएगा, या फिर कोई अलग आपको ट्रीटमेंट मिले, तो ऐसे नहीं है। पर जो मिलती है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे। तो वो उसकी क्यूरियोसिटी बनाए रखना आपकी कम्युनिटी में, और लोग नए नए जुड़ने चाहिए आपके साथ साथ हर रोज, तभी आपका कम्युनिटी रेडियो सस्टेन हो पाएगा, तभी प्रोग्राम प्रोडक्शन हो पाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स को भी लाना है, प्रोफेशनल्स को भी लाना है, हॉकर्स को भी लाना है, होम मेकर्स को भी लाना है, बच्चों को भी लाना है, सीनियर्स को भी लाना है। तो ये चैलेंजेस है। तो ये इसके लिए फिर सस्टेनेबल मॉडल आपके पास क्या है, इसके लिए एक अलग अवार्ड है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक के प्रोग्राम लिस्ट में वन आर आरजे का जो प्रोग्राम हुआ है वो सस्टेनेबिलिटी मॉडल में आता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक जो इंसान है जो 1 घंटे के लिए यहाँ पे मेरे साथ आरजे बन रहा है, तो उन्हें वो सारी सिस्टम समझ में आती है, और उन्हें ये समझ में आता है कि मैं थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट हूँ, तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे जो हम बैठे हैं वो आपको वो कंफर्ट लेवल देते हैं। वन आर आरजे का भी ये एक्सपीरियंस है कि एक सेगमेंट जो शुरुआत का रहता है ना, वहां पे वो लोग स्वाभाविक तौर पे टेंशन में रहते हैं। जैसे वो एक सेगमेंट खत्म हो जाता है, जैसे ही पहला गाना बजता है, वो लाइक ऐसे आरजे के रोल में आ जाते हैं, क्योंकि दे फाइंड दैट कंफर्ट इन दैट सेगमेंट, और गानों के साथ साथ वो माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। तो दूसरे सेगमेंट से फिर वो बहुत अच्छी तरीके से बात करने शुरू करते हैं, और वो आर्जिंग वाला एक्सपीरियंस जो है वो खुद लेने के लिए तैयार होते हैं। और उसके बाद जब 1 घंटे के बाद ये रिकॉर्ड होता है फीडबैक, तो उस फीडबैक में अपने आप वो जो ये है ना जो कंसर्न है रेडियो के बारे में, या फिर रेडियो के स्टाफ के बारे में, या फिर रेडियो मीडियम के बारे में, ये सारा उस फीडबैक में अपने आप आ जाता है। तो इट्स अपॉन यू कि आप ये कम्युनिटी को कैसे पकड़ के रखते हो, उन्हें जाने नहीं देना है, उन्हें पकड़ के रखना है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। स्टूडेंट के लिए मैं कहूंगी कि इसी सारी प्रोसेस में अगर आपको आना है तो आप कम्युनिटी रेडियो में जरूर आ सकते हैं।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर सॉफ्ट स्किल्स हम बहुत सीखते हैं कॉलेजेस में, हमारे एकेडमिक्स का वो पार्ट रहता है। जब आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ही तौर पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आपका एकेडमिक्स अच्छा होना ये तो बेसिक्स रहते ही है, वो आपको एंट्री दिलाता है बिल्कुल भी, पर उसी के साथ साथ आपने उस फील्ड में काम कितना किया है, उस फील्ड में आपने नॉलेज कितना कलेक्ट किया है, ये बहुत जरूरी रहता है। और मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी रेडियो जैसा दूसरा मीडियम नहीं है जहाँ पे इन सब के साथ, जैसे फ्री हैंड बोलते हैं ना, फ्री हैंड ट्रेनिंग रहता है, तो वैसे ही आप कम्युनिटी रेडियो में सारी चीजों का जो ट्रेनिंग है वो बहुत कूल एनवायरनमेंट में ले सकते हैं। और एक उससे आगे जाके एक बात बताती हूँ कि आपका पीआर बढ़ने लगता है जब आप कम्युनिटी रेडियो में इंटर्नशिप करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं। क्योंकि इन्फिनिटी के इस 2 सालों में, अगस्त 2022 में हमने शुरुआत की है रेडियो की, ये 2014 अगस्त में, अभी 2 साल पूरे होने बाकी है, 1 महीना बाकी है। हमने अभी तक 50 सीरीज प्रोड्यूस की है, 50 सीरीज अलग अलग विषयों पे। और वन आर आरजे के 65 शोज हो चुके हैं। वन्नी तो चेतवावा जैसे मैंने कहा उसमें 300 पार्टिसिपेंट्स रह चुके हैं। और ओकेजनल प्रोग्राम्स जो है, मतलब दिवाली आई है या फिर नवरात्र है या फिर गणेशोत्सव है या फिर ऐसे अलग अलग डेज रहते हैं हमारे यहाँ पे, युवा दिन रहता है, योगा का दिन रहता है, तो इस सारे प्रोग्राम्स को मिलजुल के हमने 700 प्रोग्राम्स अभी प्रोड्यूस किए हैं, 700 प्रोग्राम्स। तो जब आप इंटर्नशिप के लिए आते हो ना, तो रेडियो का स्टूडियो जो है ना, आपको हमेशा एंगेज मिलता है। वहां पे बहुत अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं। इन सारे 50 सीरीज के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई चित्रकार है, कोई शिल्पकार भी आ चुके हैं, कोई एंकर है पॉपुलर, कोई कोई सिंगर्स है, कोई इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर्स है। तो इन सारे जो हस्तियां है, बड़ी बड़ी भी और नई भी, इन सारों से इंटरेक्शन करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कम्युनिटी रेडियो में। मैं मेरे इंटर्न से हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपके इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आप बनाइए कि आपने आज क्या सीखा, कल क्या सीखा। ये आपको हेल्प करता है आपके रिपोर्ट मेकिंग में। पर आपकी डायरी में लास्ट पेज एक ऐसे रखिए जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स लिख पाओ। यहाँ पे जो भी ये सारे लोग आते हैं ना, एक्सपर्ट्स, तो वो आके उनका प्रोग्राम करके निकल जाते हैं। बट इफ यू आर हियर, तो उनका कांटेक्ट लेके आप नोट करके रख सकते हैं कि आज ये लॉयर आई थी, ये पीसीएमसी में इतने इतने साल काम कर रही है। तो इन फ्यूचर आप कम्युनिटी रेडियो में काम करो, आप प्राइवेट एफएम में जाओ, आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाओ, आप फिल्म मेकिंग में जाओ, कहीं पे भी आपको ये कॉन्टैक्ट्स बहुत 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 काम आने वाले हैं। तो और ये कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे इजीली मिलते हैं। हम ऐसे नहीं कहते स्टूडेंट्स को कि आप पर्सनली बात मत करो, आप यहाँ के इंटर्न्स हो तो सिर्फ रेडियो का काम करो। नो, आई ऑलवेज मोटिवेट स्टूडेंट्स कि आप खुद बात करो। आप बताओ उन्हें कि आप क्यों हो यहाँ पे, आप क्या करते हो, उनसे बातें करो, गप्पे मारो, गॉसिपिंग करो। क्योंकि गॉसिपिंग भी किससे करना चाहिए वो भी अलग बात है। तो गॉसिपिंग करो, उससे क्या होगा कि आज मेरे यहाँ पे एक इंटर्न है जो कि एंकरिंग करते हैं, और मेरे यहाँ पे एक सीरीज करने के लिए जो एक है होस्ट, वो भी फेमस एंकर है पीसीएमसी में, वो बहुत सालों से एंकरिंग कर रहे हैं। जब वो यहाँ पे आए थे और जब मेरे इंटर्न ने उन्हें कहा था कि मैं एंकरिंग करता हूँ, और मैंने उसे फिर और थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए या फिर ये पहचान बढ़े इसलिए कहा कि ये बहुत आप श्योरिटी से कोई भी प्रोग्राम अगर आए तो फिर आप उन्हें जरूर दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छा ये एंकरिंग कर लेते हैं। तो तब भी उन्होंने अपना पेन लिया, डायरी ली, उनका नंबर नोट कर दिया, मतलब इंटर्न का, और उन्होंने कहा कि आप बोल रही है ना मैम, तो ये करते होंगे, तो आगे मेरे पास अगर कोई हिंदी इंग्लिश ऐसे एंकरिंग का प्रोग्राम आ जाए तो मैं उन्हें जरूर कांटेक्ट करूंगा। ये ब्रेक मिलना बहुत जरूरी होता है। हम मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो हमें वो पता है कि ब्रेक मिलना बहुत जरूरी है।
तो वो ब्रेक आपको किसके माध्यम से मिलेगा पता नहीं है। तो उसके लिए जो सर्चिंग है, जो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल इज वेरी पॉपुलर वर्ड, तो वो स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, और कम्युनिटी रेडियो में वो स्ट्रगल बहुत जॉयफुली आप कर सकते हैं। तो ये पीआर आपका बहुत बढ़ता है। तो ये मैं कहती हूँ कि वो कांटेक्ट लिस्ट आपको आप बनाओ। एक महीने में आपके पास आराम से 30-40 कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के। ये आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिलता, जो कि कम्युनिटी रेडियो पे मिलता है। तो ये सारी स्ट्रेंथ्स है रेडियो की। आई होप कि थोड़ा सा अंदाज आ गया होगा कि हाउ कम्युनिटी रेडियोज आर वर्किंग, और आगे भी करने वाले हैं। Yes, thank you so much, मैम। मुझे तो लगता है like all the students will be pretty excited now to join। जरूर तो इतना जरूर अच्छा जरूर। update करके। Okay, ma'am, thank you so much। We'll just wind up, we'll just conclude with the formal vote of thanks। कुछ students के queries भी रहेंगे, if you don't mind, we can connect with you later also। या श्योर श्योर श्योर। Yes। So with this, uh, like we would just conclude with a formal vote of thanks. So I express my heartfelt gratitude to you, Madhuri ma'am, and especially for such an interactive and expressive session. And for giving us the whole knowledge about how does the radio works, how to produce the content, and also this producing the content for the community radio, telling us about the opportunities available to the students, and also encouraging them. या So I'm pretty sure key students must have written down, noted all the advices shared by you, and they will inculcate the same. So thank you so much, ma'am. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। Uh, we would also like to thank our founders and PCET Board of Trustees, as well as our Honorable Vice Chancellor, Dr. Manimala Puri ma'am, and Pro Vice Chancellor, Dr. Sudeep Thepade sir, for making this event possible. I'm also grateful to our HOI, Dr. Narendra Bandabe sir, for his constant support. And also, our thank extends to dean, directors, head of institutes, faculty members who were present here from various schools of Pimpri Chinchwad universities. Your presence have deeply supported us. And appreciation also goes to our Professor Pooja ma'am and Abhishek Chaudhary sir. A big thank also goes to the marketing team and the admission teams for their relentless efforts for promoting this event and for providing us with all the technical support. Lastly, I would also like to thank all the students who have joined with us for this session. For the students, if you have further queries, you can connect with us anytime, and we keep on organizing webinars as such, and you can get the updates through the your social media handles or through the personal WhatsApp handles also. So please stay tuned with us. Thank you so much, everyone. Have a wonderful day. Thank you so much, ma'am. थैंक यू बाय।